منبر نور پر موجود تمام تر معزز علماء کرام، خصوصاً کے ساتھ حضرت علامہ مفتی نور محمد صاحب قبلہ، پیکر اخلاق و محبت حضرت علامہ مولانا فیضان صاحب قبلہ، نقیب ہندوستان جناب سلمان رضا واحدی صاحب، پیکر اخلاق جناب قاری ابوالحسن واحدی صاحب قبلہ، شاعر اسلام جناب شان عالم مسعودی، حضرت علامہ مولانا رضوان اظہری صاحب، دیگر ہمارے تمام تر معزز علماء کرام، شعراء کرام، محترم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المطہرین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات بلا تاخیر، کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اور کچھ ہی لمحوں کے بعد انشاءاللہ تعالی شہزادہ طاہر ملت حضور سرکار سہیل ملت کی آمد بھی انشاءاللہ ہونے والی ہے، اور بہت جلد انشاءاللہ اس پروگرام کا اختتام بھی ہونے والا ہے۔ اس لیے آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ نہایت ادب و احترام کے ساتھ آپ یہاں پر تشریف رکھیں۔ آئیے حصول برکت کے لیے سب سے پہلے اللہ کے حبیب دونوں عالم کے طبیب جناب احمد مختار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس فنا میں درود شریف کا نذرانہ بانداز غلامانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور سارا مجمع مل کر کے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ تمامی حضرات دارالعلوم معینیہ رحمانیہ کے ذہن میں الحمدللہ بیٹھے ہوئے اور مدرسے کے سامنے ہیں، اللہ کے رسول کے گھر کے سامنے ہے، اور ہر غلام کی ذمہ داری ہے کہ جب جب اسے موقع ملے تو وہ پیارے آقا پر درود شریف پڑھتا رہے، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی عبادت نہیں، سب سے افضل عبادت درود پاک ہے۔ اور اب تو الحمدللہ، ابھی میں 3 دن پہلے مدینہ شریف میں تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اس سے پہلے اسی مہینے میں اللہ کا بے پناہ کرم ہے چاند نکلا تو اس وقت میں مصر کی سرزمین پر تھا، سبحان اللہ، وہاں بھی میلاد رسول کی محفل سجائی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی مہینے میں چاند نکلنے کے بعد میں دبئی کی سرزمین پر تھا، الحمدللہ دبئی کے لوگ وہ بھی میلاد رسول کی محفل سجا رہے تھے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد الحمدللہ میں مکہ شریف اور مدینہ شریف کی سرزمین پر تھا، سبحان اللہ، وہاں پر بھی میلاد رسول کی محفل سجائی جا رہی ہے۔ ایک دن پہلے میں نیپال کی سرزمین پر تھا، وہاں پر بھی میلاد رسول کی محفل سجائی رہی تھی، اور الحمدللہ آج قصبہ سیتاپور کی سرزمین ہے اور پیارے آقا کے میلاد رسول کی الحمدللہ محفل سجائی۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہر جگہ پر پیارے آقا کا تذکرہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی زبان بولنے والا انسان ہو، چاہے عربی بولنے والا ہو، چاہے انگریزی بولنے والا ہو، چاہے فرنچ بولنے والا ہو، چاہے چائنیز بولنے والا ہو، چاہے جاپانیز بولنے والا ہو، الحمدللہ جہاں پر بھی پیارے آقا کا غلام ہوتا ہے وہاں پر پیارے آقا کا تذکرہ ہوتا ہے۔ پوری کائنات بڑی ذمہ داری کے ساتھ جہاں بھی غلام رسول ہوتا ہے وہاں پر الحمدللہ پیارے آقا کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اور ہم غلاموں کی ذمہ داری ہے کہ جب بھی موقع ملے تو ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے۔ الحمدللہ مسجد نبوی شریف کے باب السلام کے گیٹ کے سامنے بہت بڑا بینر لگا ہوا ہے، پہلے نہیں تھا، اس بار میں نے دیکھا الحمدللہ بہت بڑا بینر لگا ہوا ہے، اور اس پر یہ لکھا ہوا ہے، باقاعدہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ جو بندہ پیارے آقا پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اس پر اللہ کی 10 رحمتیں نازل، اس پر اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ میں
میں نے روایتوں میں یہ بھی پڑھا ہے کہ اگر بندہ پریشان حال ہے تو درود شریف کی کثرت کرے تو درود شریف کی برکت سے اللہ بندے کی پریشانیوں کو دور فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے کہنا نہ پڑے کہ آپ بولے، آپ محبت کے ساتھ سنتے رہے سبحان اللہ الحمدللہ کا ورد کرتے رہے. میں نے روایتوں میں پڑھا ہے اگر بندہ محبت کے ساتھ گارے آقا پر درود شریف پڑھے نا اور پڑھنے کے بعد پانی پر دم کرے، پانی پر دم کرنے کے بعد کسی مریض کو پلا دے تو اللہ اس مریض کو بیمار کو شفا عطا فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ سبحان اللہ. بہت بہت مریض کو شفا عطا فرما دیتا ہے. یہی نہیں، میں نے روایتوں میں یہاں تک پڑھا ہے اگر بندہ محبت کے ساتھ پیارے آقا پر درود شریف کو اپنا وظیفہ بنا لے تو درود شریف کی برکت سے اللہ بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. گناہ معاف ہوتے ہیں، حدیث میں آگے گئی روایت موجود ہے. یہی نہیں بلکہ بندہ محبت کے ساتھ پیارے آقا پر درود شریف پڑھتا ہے تو بندہ دعا کرے کہ نہ کرے اللہ درود شریف کی برکت سے اس کی ہر جائز تمنا کو پوری فرما دے. پتا کیا چلا؟ پریشانیاں دور ہو، بیماروں کو شفا ملے. درود شریف کی بنیاد پر عمر میں برکت ہو، درود شریف کی بنیاد پر بندے کے روزگار میں برکت ہو، درود شریف کی بنیاد پر اللہ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے، درود شریف کی بنیاد پر بندے کی جائز تمنا پوری ہو جائے، درود شریف کی بنیاد پر بندے کی بیماری دور ہو جائے. ارے ہم تو اس عقیدے کے ماننے والے ہیں جو عقیدہ بریلی کے امام نے ہمیں دیا ہے. ہر درد کی دوا ہے صلی اللہ محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی اللہ محمد. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن رحمت للعالمین، آمد مصطفیٰ، آمد حضور سہیل دل. بہت ہر درد کی دوا ہے صلی اللہ محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی اللہ محمد. ہمارا تو ہر بگڑا کام درود شریف کے صدقے میں بن جاتا ہے. لیکن حضرات گرامی ایک روایت سنے جس کو محقق الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے. اگر بندہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھے تو اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے. بندہ محبت کے ساتھ درود شریف کو اپنا وظیفہ بنا لے تو اللہ اس کے روزگار میں برکت عطا فرماتا ہے. بندہ محبت کے ساتھ درود شریف کو اپنا وظیفہ بنا لے تو اللہ بندے کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اللہ بندے کی جائز تمنا کو پوری فرماتا ہے، اللہ مریضوں کو شفا عطا فرما دیتا ہے. یہ تمام تر روایتیں صحابہ کے اقوال احادیث کے اوراق میں موجود، تابعین کے اقوال میں موجود. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک روایت کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے نقل فرمایا ہے. وہ فرماتے ہیں یہ سارے فضائل و مناقب بندے کو حاصل ہوتے ہیں، لیکن جو بندہ عقیدت و محبت کے ساتھ پیارے آقا پر درود شریف کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے تو درود شریف کی برکت یہ ہے کہ اللہ اس کے آنے والی 3 نسلوں میں، اللہ اس کے آنے والے 3 خاندان میں اللہ عاشق رسول کو پیدا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عاشق رسول بہت کیا پیدا ہوتے ہیں؟ عاشق رسول. خاندان میں عاشق رسول، یعنی خود بھی عاشق رسول بن جائے گا، بیٹا بھی عاشق رسول بن جائے گا، انشاءاللہ پوتا بھی عاشق رسول بن جائے گا. اور اگر آپ کو یقین نہ ہو تو جس نے ہمیں درود و سلام پڑھنا سکھایا ہے وہ بریلی کا امام عشق محبت ہے، وہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے. انہوں نے ہمیں پڑھنا بھی سکھایا اور خود بھی پڑھا، ایسا پڑھا کہ اللہ نے اعلیٰ حضرت کو عاشق رسول بنا دیا، اللہ نے حجت الاسلام کو عاشق رسول بنا دیا، اللہ نے مفتی اعظم ہند کو عاشق رسول بنا دیا، اللہ نے حضور تاج الشریعہ کو آگے. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہاں سے بہت اچھا. خاندان میں عاشق رسول کی لائن لگ گئی. یہ فائدہ کس کا ہے؟ درود پاک پڑھنے کا ہے. بے شک بے شک. بسوا کے سنی مسلمانوں، ہم کو چاہیے کہ ہم لوگ بھی پابندی کے ساتھ پیارے آقا پر درود شریف پڑھیں تاکہ ہمارا بیٹا کچھ بنے یا نہ بنے لیکن عاشق رسول بن جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور عاشق رسول بن گئے آپ تو سمجھ لو کہ زندگی کامیاب ہوگی. بے شک بے شک. عاشق رسول بنا تو کیا ہو جائے گا؟ کامیاب. زندگی کامیاب ہو جائے گی. اور سنیں ایک بات یاد آ گئی، بس ایک چھوٹی سی بات بیان کر کے بڑی تیزی کے ساتھ میں دلائل کی روشنی میں کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن مجھے بات یاد آ گئی ڈاکٹر اقبال کی. آگے گزر جانا چاہتا ہوں. ڈاکٹر اقبال کا انتقال ہو گیا. لوگوں نے خواب میں دیکھا تھا ڈاکٹر صاحب آپ کا انتقال ہو گیا، ذرا بتائیے تو صحیح اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ آپ کے انتقال کے بعد اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا معاملہ کیا؟ ڈاکٹر اقبال قلندر لاہوری کا تذکرہ ہو رہا ہے. ذرا سنیں، عجیب مرد قلندر جو 100 سال پہلے ڈاکٹر اقبال نے لکھا ایک ایک لفظ آج ہماری نگاہوں کے سامنے. مسجد مرثیہ صاحب کی نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کے حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. ایک ایک لفظ نگاہوں کے سامنے.
ऐसा अजीब मर्द कलंदर लाहौरी डॉक्टर इकबाल का विशाल हुआ। लोगों ने ख्वाब में देखा, कहा डॉक्टर साहब जरा बताइए तो सही, आपका इंतकाल हुआ, अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला किया। डॉक्टर इकबाल का जवाब सुनी। डॉक्टर इकबाल कहते हैं सुनो सुनो, जब मेरा इंतकाल हुआ ना, इंतकाल के बाद मैं तो गुनहगार इंसान था, मैं तो बदकार इंसान था, मेरे पास नेकियां नहीं थी, मैंने बहुत सारी नातें लिखी थी, बहुत सारी मनकबतें लिखी थी, पूरी कुलियात इकबाल इतनी मोटी किताब में छोड़ करके आया हूँ, लेकिन सिर्फ एक शेर की बुनियाद पर अल्लाह ने मेरे तमाम गुनाहों को माफ किया। एक शेर की बुनियाद पर अल्लाह ने मेरे तमाम गुनाहों को माफ फरमा दिया। अब सुनो मोहब्बत रसूल का मतलब क्या है और इसके रसूल का फायदा क्या है। एक शेर की बुनियाद पर अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी। लोगों ने सवाल किया, डॉक्टर साहब जरा बताइए तो सही वो शेर कौन सा है। वो शेर कौन सा है। मैंने तो बड़ी नातें लिखी थी, मनकबतें लिखी थी, बड़े अशार लिखे थे, कुलियात इकबाल थोड़ी लिखी, लेकिन मेरे पास कोई ऐसी इबादत नहीं थी, ऐसे मामलात नहीं थे जिसकी बुनियाद पर मैं घमंड करता या फख्र करता। लेकिन सुनो, एक शेर की बुनियाद पर अल्लाह ने मेरे गुनाहों को माफ फरमा दिया। एक शेर की बुनियाद पर अल्लाह ने मेरे बिगड़े हुए नसीबे को संवार दिया। एक शेर की बुनियाद पर अल्लाह ने मेरी बिगड़ी हुई तकदीर को संवार दिया। लोगों ने कहा वो शेर कौन सा है, जरा बताइए तो सही, ताकि हमारी जिंदगी में भी इनकलाब पैदा हो जाए, ताकि हम भी आने वाले वक्त में इसी कोशिश करें। अब तवज्जो के साथ सुनना। डॉक्टर इकबाल ने कहा यूं तो बड़ी नातें लिखी थी, मनकबतें लिखी थी, बड़े बड़े अशार लिखे थे, लेकिन वो शेर जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने मेरे बिगड़े हुए नसीबे को संवार दिया, अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी, वो शेर ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, इश्क़े मुस्तफा। बहुत ये शान है। तवज्जो के साथ सुने। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है, अल्लाह ने आयत करीमा नाज़िल फरमाई, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। हालांकि ये आयत करीमा मुझे रमजान के मौके पर पढ़ना चाहिए, लेकिन मैंने आज पढ़ा है मिलाद के मौके पर। आखिर मामला क्या है सुनो। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को शब-ए क़द्र में नाज़िल किया। हमने इस कुरान को कब नाज़िल किया? शब-ए क़द्र में। पूरे का पूरा कुरान अल्लाह ने कब उतारा? शब-ए क़द्र। भाई बिस्वा के सुन्नी मुसलमानों, इतना याद रखो, इतनी चीजें हमें जानना चाहिए कि अल्लाह ने पूरे का पूरा कुरान कब नाज़िल किया? शहरो रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान का वो मुबारक महीना जिसमें कुरान नाज़िल हुआ। रमजान में कुरान नाज़िल हुआ और रमजान में शब-ए क़द्र में पूरे का पूरा कुरान लौहे महफूज से आसमान दुनिया। बात को समझिए। कुछ लोग एतराज भी करते हैं, उनकी मैं ख्यालत का जवाब भी दे दूं इसी आयत करीमा की रोशनी में। सुनो, अल्लाह ने पूरे का पूरा कुरान कब नाज़िल किया? शब-ए क़द्र में। लौहे महफूज से आसमान दुनिया पर पूरा कुरान एक साथ नाज़िल हुआ और फिर 23 साल तक जरूरत के मुताबिक अल्लाह ने अपने महबूब पर उस कुरान को नाज़िल किया। लेकिन पूरे का पूरा कुरान कब नाज़िल हुआ? शब-ए क़द्र। कब नाज़िल हुआ भाई? शब-ए क़द्र। अगर आपको बात समझ में आ रही तो थोड़ा जवाब दीजिए, कब नाज़िल हुआ? शब-ए क़द्र में। शब-ए क़द्र में पूरे का पूरा कुरान नाज़िल हुआ। अल्लाह फरमाता है कि शब-ए क़द्र, इसका मामला क्या है? वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र है क्या? ये कितनी कद्र वाली रात है, कितनी अज़मत वाली रात है, कितनी इज्जत वाली रात है, तुम्हें क्या मालूम? तुम्हें तो इसका अंदाजा भी नहीं, इसका मकाम क्या है, इसका मर्तबा क्या है, इसकी अज़मत क्या है, इसकी इज्जत क्या है। खुद इरशाद फरमाता है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये कद्र वाली रात तो इतनी अज़मत वाली रात है, ये तो इतनी बाबरकत रात है कि इस रात में जाग करके अगर बंदा इस रात में इबादत कर ले, इसको हासिल कर ले, तो इस रात में इबादत करना 1000 महीनों की इबादत से ज्यादा बेहतर है। जी बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। 1000 महीनों की इबादत से ज्यादा बेहतर है। कौन सी रात? शब-ए क़द्र। अगर बंदा इसे हासिल कर ले तो अच्छा। पूरे का पूरा कुरान नाजिल हुआ कब? शब-ए क़द्र। कितनी मरतबा? एक मरतबा, सिर्फ एक मरतबा। ऐसा नहीं कि हर शब-ए क़द्र में कुरान नाजिल होता। पूरे का पूरा कुरान शब-ए क़द्र में लौहे महफूज से आसमान दुनिया पर एक मरतबा, और वहां से जरूरत के मुताबिक 23 साल तक हमारे सरकार पर नाजिल हुआ। लेकिन पूरे का पूरा कुरान रमजान में शब-ए क़द्र में नाजिल हुआ, वो भी एक मरतबा। ये नहीं कि हर मरतबा नाजिल हो, ऐसा नहीं कि पिछले शब-ए क़द्र में नाजिल हुआ था, ऐसा भी नहीं कि आने वाली शब-ए क़द्र में नाजिल होगा। लेकिन हज़रात गिरामी, इस्लाम में वक्त की बड़ी अहमियत है। अगरचे पूरे का पूरा कुरान नाजिल हुआ एक मरतबा, लेकिन आज भी जब जब रमजान में वो रात आती है, अल्लाह की रहमतें फिर से नाजिल होती है, बरकतें फिर से नाजिल होती है, तजल्लियात की बरसात फिर से होती है। इसलिए कि जब जब वो रात
माशाअल्लाह। जिसको हम शबे मीलाद कहते हैं। जी जी, बहुत उम्दा जी। इस रात में कुरान नहीं साहिब कुरान आया। मुझ पर कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तुम ना आते तो ये रमजान कहाँ से आता। बेशक। अब इमाम कस्तलानी ने 3 वजहों से इसकी फजीलत बयान की। इमाम कस्तलानी फरमाते हैं कि सुनो, 3 वजहों से शबे मीलाद शबे कद्र से अफजल है। इमाम कस्तलानी फरमाते 3 वजूह से। नंबर 1, शबे कद्र किसको अता की गई? हमारे सरकार को। जी। शबे कद्र किसे अता हुई? हमारे सरकार। और शबे मीलाद में खुद सरकार तशरीफ लाए। तो सीधी सी बात है, जिसके सदके में जो चीज मिलती है उसका मकाम छोटा होता है, और जिसके सदके में मिलती है वो साहिब बड़ा होता है। और कुरान को मिला है सरकार को, लेकिन कुरान जिनको मिला है उस साथ को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके सदके में कुरान मिला, लिहाजा साहिब कुरान की अजमत ज्यादा होगी। लिहाजा जिस रात में वो आए वो रात ज्यादा अफजल। दूसरी वजह इमाम कस्तलानी फरमाते हैं कि ये रात अफजल इसलिए है, शबे कद्र इसलिए अफजल है कि इस रात में फरिश्ते नाजिल होते हैं। तनस्सलुल मलाइकतु वर्रूह। जी जी। कौन आता है इस रात में? फरिश्ते। इस रात में फरिश्ते आते हैं, फरिश्ते के साथ जिब्रील अमीन भी आते हैं। हमें शबे कद्र में फरिश्ते आते हैं, जिब्रील अमीन आते हैं, लेकिन शबे मीलाद में तो कायनात का सरदार तशरीफ लाया है, ताहा व यासीन तशरीफ लाया है, मुसम्मिल तशरीफ लाया है, मुदस्सिर तशरीफ लाया है, रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ लाया है, मालिक कौनो मकान तशरीफ लाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा शबे मीलाद शबे कद्र से ज्यादा अफजल। और एक वजह और बयान फरमाते हैं कि शबे कद्र और शबे मीलाद में शबे मीलाद शबे कद्र से अफजल है। उसकी वजह यह है कि शबे कद्र किसे मिली? हम उम्मतियों को, मुसलमानों जी। शबे कद्र किसे मिली? शबे कद्र की जो बरकतें हैं किसके लिए है? मुसलमानों के लिए ना कि काफिरों के लिए? मुसलमानों के लिए। बोलो भाई, किसके लिए? सारे लोग बताएं किसके लिए, हाथ उठा के बताइए किसके लिए? मुसलमानों के लिए। हम मुसलमानों के लिए। अगर कोई मुसलमान बंदा शबे कद्र में जाके यानी कद्र की रात में जाके उसे हासिल कर ले तो अल्लाह उसे 1000 महीनों की इबादत का सवाब अता फरमाएगा। किसके लिए? मुसलमानों के लिए। लेकिन प्यारे आका की साथ वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ महबूब, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। शबे कद्र मुसलमानों के लिए है, लेकिन प्यारे आका के साथ ये तो इंसानों के लिए भी रहमत है, जिन्नातों के लिए भी रहमत है, चरिंदे परिंदे के लिए भी रहमत है, हैवानात के लिए भी रहमत है, नबातात के लिए भी रहमत है, फरिश्तों के लिए भी रहमत है, तमाम आलम के लिए रहमत है। अरे वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुनाज़िरे अहले सुन्नत, मुनाज़िरे अहले सुन्नत, खलीफे हुज़ूर महदुश शरिया, खलीफे हुज़ूर सदरुल उलमा, खलीफे हुज़ूर महदुश शरिया, हुज़ूर मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद एजाज हुसैन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद। नारे तकबीर, नारे अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी निगाहों के सामने मुनाज़िर इस्लाम हज़रत अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती एजाज हुसैन साहब किबला मुद्दसिल्लहुल आली व नूरानी तशरीफ फरमा के चेहरे की आप ज़ियारत करें इंशाअल्लाह ताला। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि आले नबी औलाद अली सरकार से मिल्लत की क़यामत होने वाली है। हज़रात गिरामी 3 वजहों से इमाम कस्तलानी फरमाते 3 बुनियाद पर शबे मीलाद शबे कद्र से ज्यादा अफजल है। इसलिए कि शबे कद्र मुसलमानों को दी गई, उम्मतियों को दी गई, लेकिन प्यारे आका के साथ वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वो सारे जहान के लिए रहमत है, वो इंसान के लिए भी रहमत है, वो जिन्नात के लिए भी रहमत है, वो फरिश्तों के लिए भी रहमत है, सारी कायनात के लिए रहमत है। जी जी। और यही नहीं, अल्लामा तहावी फरमाते हैं यानी रातों में सबसे अफजल रात वो रात है जिस रात में प्यारे आका तशरीफ लाए। फिर उसके बाद शबे कद्र का मकाम।
اور یہی نہیں، علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی فرماتے ہیں اپنی کتاب الانوار المحمدیہ میں، ارشاد فرماتے ہیں ولیلۃ مولدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل من لیلۃ القدر، یعنی سرکار کے ولادت کی رات یہ شب قدر سے زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ رات اتنی افضل ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر اس رات میں مومن جاگے، اس رات میں مومن درود شریف کا ورد کرے، اس رات میں نوافل عبادتیں کی جائیں، اس رات میں سرکار کا میلاد منایا جائے تو اللہ اسے کتنی برکتیں عطا فرمائے گا، اس پر کتنی رحمتیں عطا فرمائے گا۔ حضرات گرامی یہ بہت ہی قسمت کی بات ہے جو لوگ سرکار کا میلاد مناتے ہیں، اور سنیں ہم لوگ اسے عید میلاد النبی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عید میلاد النبی۔ کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، خاص طور سے جو لوگ 12 ملا کر ہوتے ہیں ان کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کا حساب کمزور ہے کیا؟ تیز ہے، سمجھ گئے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے، عجیب جاہل لوگ ہیں۔ ارے یار اللہ نے قرآن پاک میں آیت کریمہ نازل فرمائی، سنو، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک۔ قرآن پاک میں اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، اے مولا، حضرت عیسیٰ ابن مریم دعا کر رہے ہیں، اے مولا ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان نازل فرما دے، اور جس دن تو دسترخوان نازل فرمائے گا یہ دن ہم سب کے لیے عید کا دن ہوگا، ہمارے اگلوں کے لیے بھی عید کا دن ہوگا، ہمارے پچھلے آنے والی امتیوں کے لیے بھی عید کا دن ہوگا، اور یہ تیری طرف سے ہمارے لیے نشانی بھی ہو جائے گی۔ پتا کیا چلا؟ آسمان سے پچھلی امتوں میں اگر کوئی نعمت ملے تو اس نعمت کے ملنے والے دن کو وہ امتی اور امت والے لوگ بطور عید منائیں۔ سبحان اللہ۔ عید کا دن منائیں جس دن ایک نعمت انہیں ملی، ایک نعمت مل جائے، یعنی آسمان سے کھانا نازل ہو گیا، دسترخوان نازل ہو گیا، اگر جس دن نازل ہوگا تو اس دن کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ عید کا دن منائیں گے۔ اور اس سے پہلے بھی باقاعدہ الیوم اکملت لکم دینکم، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا، یہودی آئے کہنے لگے، عبداللہ ابن عباس کی روایت میں کہنے لگے اگر یہ آیت ہمارے حق میں نازل ہوتی تو جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی ہم اس کو عید کا دن مناتے۔ یہاں تک کہ جمعہ کے دن کے بارے میں سرکار نے فرمایا یہ عید کا دن ہے اس لیے کہ اس میں آدم پیدا کیے گئے ہیں۔ پتا کیا چلا؟ عید کا ثبوت۔ ارے یار ایک نعمت مل جائے تو اس پر دوسری امتیں عید کا دن منائے، جس دن تمام نعمتوں کا سردار، جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بنایا ہے، جس کے صدقے میں اللہ نے آسمان کو بنایا ہے، جس کے صدقے میں اللہ نے زمین کو بنایا ہے، جب دنیا کی سب سے بڑی نعمت جس دن ہم غلاموں کو ملے اس دن ہم بطور عید کیوں نہ منائیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک سب سے بڑی نعمت۔ جی اور اللہ تو فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ اے میرے بندو اللہ کی نعمت کا تذکرہ کرو، جب تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے تو ایک آنے والا آیا، اس کی وجہ سے اس نے تم لوگوں کے دلوں کو ملا دیا، اس نے تم لوگوں کے دلوں کو ملایا، تو اس کی نعمت کی وجہ سے، اس آنے والے کی نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ پتا کیا چلا؟ محبوب کی آمد کے دن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ تم اس کا تذکرہ کرو، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تم اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو، تو ہم نعمت کا تذکرہ کیوں نہ کریں، ہم عید کا دن کیوں نہ منائیں؟ اس لیے کہ تمام عالم کے جن و انسان خوشی کے نغمات گا رہے ہیں، بنی ہے جن کے لیے یہ دنیا وہ آج تشریف نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن رحمت للعالمین، آمد مصطفیٰ واحدی دولا خلیفہ حضور شریعہ زندہ باد۔ حضرات گرامی اب سرکار کے بچپن کے میں تھوڑے سے واقعات آپ کے سامنے پیش کر دوں، لیکن آپ اچھی نیتیں کر لیں، اس لیے کہ جب سرکار کے بچپن کے واقعات سنے جاتے ہیں نا اس وقت جو بندہ جائز تمنا کر لیتا ہے اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں اسے پورا فرما دیتا ہے، اس تمناؤں کو پوری کر دیتا ہے، ان کے تمام ان کی جو بھی نیک دعائیں ہوتی ہیں اللہ محبوب کے صدقے میں اسے پوری فرما دیتا ہے۔ حضرات گرامی سرکار کی آمد کا وقت قریب ہوا، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اللہ کے رسول کی والدہ محترمہ ہے، حضرات گرامی شان کتنی نرالی ہے، توجہ کے ساتھ سننا۔ اب سرکار کی آمد کی کچھ باتیں میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ حضرت آمنہ جب پانی بھرنے کے لیے گھر سے باہر نکلتی نا تو جس راستے سے آپ گزرتی تھی اس راستے میں خوشبو پھیل جایا کرتی تھی، تھوڑا سبحان اللہ کے صلاحوں میں سنیں اور بلند آواز سے سبحان اللہ کہے۔ حضرت آمنہ جس راستے سے گزرے اس راستے میں باقاعدہ خوشبو پھیل جایا کرتی تھی۔ حضرات گرامی کچھ لوگوں نے آ کر کے شکایت کی، کس سے؟ سردار قریش جناب عبد المطلب سے، کہا کہ دیکھیے آپ تو سردار قریش ہے اور آپ کی بہو کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کے بیٹے عبداللہ کا تو انتقال ہو چکا ہے اور عرب کی سرزمین پر یہ بات
ऐप की बात समझी जाती थी कि अगर कोई बेवा औरत खुशबू लगा करके मोहल्ले में निकले या गली में निकले तो उस पर ऐप समझा जाता था। कुछ लोग आए कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब आप तो सरदार कुरैश हैं, हमारे यहाँ का मामला आपको पता है, अगर किसी के शौहर का इंतकाल हो जाए और उसकी बीवी अगर खुशबू लगा करके निकले ये तो ऐप की बात मानी जाती है, लेकिन अजीबोगरीब मामला है, आपके बेटे का इंतकाल हो चुका है लेकिन आपकी बहू जब घर से बाहर निकलती है तो मामला ये होता है कि जिस रास्ते से वो गुजरती है उस रास्ते में खुशबू फैल जाती है। जब ये सुना तो अब्दुल मुत्तलिब को बड़ी तकलीफ हुई। सरदार कुरैश ने अपनी बीवी से कहा अजीबोगरीब मामला है, ये तो हमारे यहाँ रवाज है, कुरैश में ये रिवायत है कि अगर कोई बेवा औरत खुशबू लगाए तो ये ऐप उठा जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ अगर कोई बेवा औरत हो वो कहीं रंग बिरंगे कपड़े पहन ले तो लोग कहते हैं कि अजीबोगरीब मामला है, अभी शौहर का इंतकाल हुआ इसको कोई गम ही नहीं है, तो वहां पर खुशबू लगाना बड़े ऐप की बात थी। हज़रत आमना के बारे में जब ये सुना अब्दुल मुत्तलिब फौरन अपने घर में आए, आकर के कहने लगे अपनी बीवी से देखो सुनती हो अजीबोगरीब मामला है, आमना के शौहर का इंतकाल हो गया, मेरे लगते जिगर अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, लेकिन आमना को कोई फिक्र नहीं है, आमना को कोई तकलीफ नहीं है। लोगों ने शिकायत की है कि आमना खुशबू लगा करके बाहर निकलती है। इतना सुनना था हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की वालिदा को अहलिया को बड़ी तकलीफ हुई। फौरन अहलिया आई हज़रत आमना के पास, कहने लगी ये आमना अजीबोगरीब मामला है, मेरे बेटे के जाने का गम तुझे नहीं है, मेरे बेटे का इंतकाल हो गया लेकिन तो खुशबू लगा करके बाहर निकलती है। लोगों ने आकर के सरदार कुरैश जनाब अब्दुल मुत्तलिब से जनाब आकर के हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से बाकायदा शिकायत की है कि आपके बहू का मामला ये है कि जब वो बाहर निकलती है तो खुशबू लगा करके बाहर निकलती है। इतना सुनना था हज़रत आमना की आंखों में आंसू आ गए, अर्ज करने लगे अम्मी जान ऐसा मामला तो नहीं है, जब से मेरे शौहर जनाब अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ है मामला तो ये है मैंने आज तक पेट भर करके खाना भी नहीं खाया, मैंने आज तक पेट भर करके खाना नहीं खाया, मैं खुशबू कहाँ से लगाऊंगी, ये तो मुझसे हो ही नहीं सकता। लेकिन कहने लगी अब्दुल मुत्तलिब की अहलिया कहने लगी लोगों ने तो आकर शिकायत की है कि तुम जिस रास्ते से गुजरती हो तो पानी भरने के लिए पेड़ पर जाती हो, जिस रास्ते पर जाती हो वहां पर खुशबू फैल जाती है, आखिर मामला क्या है। हज़रत आमना ने जवाब दिया अरे मामला ये है मैंने खुशबू का इस्तेमाल आज तक नहीं किया, लेकिन ये तो अब्दुल्ला की अमानत का कमाल है, जब से अब्दुल्ला की अमानत मेरे बदन के अंदर मेरे पेट के अंदर आई है, जब से मैं जिस रास्ते से गुजरती हूँ उस रास्ते में खुशबू फैल जाती है, उस रास्ते में महक फैल जाती है। जब बरेली के इमाम की नजर पड़ी, बरेली के इमाम पुकार उठा, उनकी महक ने दिल गए उनसे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं दूसरे बसा। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह मरहबा मरहबा अल्लाह अकबर आला हज़रत आला हज़रत ताज शरिया ताज अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। ग्रामी शान कितनी निराली है। हज़रत आमना ने कहा सर मामला यही नहीं है बल्कि मामला तो ये है जिस बिस्तर पर मैं लेटती हूँ बिस्तर से भी खुशबू आती है, उस तकिए से भी खुशबू आती है, उस कमरे के तरफ दीवार से भी खुशबू आती है। हज़रत आमना फरमाती है जिस वक्त सरकार की विलादत हुई खरजा मिन्नी नूर, मेरे अंदर से एक नूर निकला, एक रोशनी निकली और ऐसी रोशनी निकली कि मेरे सामने से हिजाबात हटा दिए गए, यहाँ तक कि मैंने अपने घर में मक्के में बैठे बैठे शाम के महलों को देख लिया, शाम की बिल्डिंगों को देख लिया। खलीफे आला हज़रत अल्लामा जमील कादरी की निगाह पड़ी, बोल उठे ए शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम सीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। रोशनी में आमना ने जिनकी देखे मुल्क शाम, वाह वाह क्या चांद निकला अस्सलातु वस्सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत बहुत वाह वाह क्या चांद निकला अस्सलातु वस्सलाम। आज ऐसा चांद आया है हम उसी का मीलाद मना रहे हैं। ऐ बिस्वा के सरजमीन पर रहने वाले सच्चे मुसलमानों, कसम खुदा की सरकार की मोहब्बत अगर सीने में है तो सारी चीजें काम में आने वाली है, अगर सरकार की मोहब्बत नहीं है तो कोई चीज काम में आने वाली नहीं है। जैसे कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अगर सरकार की मोहब्बत नहीं तो कोई चीज काम में आने वाली नहीं है। सरकार के बचपन के वाक़या सुनो, हज़रत आमना फरमाती है सरकार पैदा हुए, जब मेरा बेटा पैदा हुआ ना तो पैदा होने के बाद उसने सर को सजदे में रख दिया और रब्बे हबली उम्मती की सदा आ रही थी, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम ए शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम सीनते अर्शे मौला अस्सलातु वस्सलाम। लड़के पैदा होते ही रोने लगते हैं, अगर कोई लड़का रोए ना तो डॉक्टर भी परेशान हो जाता है, बाप भी परेशान हो जाता है, माँ भी परेशान हो जाती है। बेटा पैदा हुआ रोया नहीं, अगर बेटा रोएगा नहीं तो लगता है इसको कोई तबीयत खराब हो जाएगी, इसको कोई बड़ी बीमारी लग जाएगी। लेकिन आज जब अब्दुल्ला का लाल आमना का लाल कायनात में आया है तो वो रोया नहीं, समानत मेरा अपने
जो आया है ये रोने के लिए नहीं बल्कि ये तो रोने वाले को हंसाने वाला है। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत जिंदाबाद। जो रोने वाले हैं उनको हंसाने वाला बनकर के तशरीफ लाया है, वो तो बेबसों का बस बन करके तशरीफ लाया है, वो तो बेबसों का बस बन करके तशरीफ लाया है। हमें बेटे पैदा हो उनकी नाप का कनेक्शन होता है, जब तक नाप का काटा न जाए जब तक मामला सही नहीं होता। लेकिन सरकार पैदा हुए तो नाप फरीदा पैदा हुए, उनकी नाप पहले से कटी हुई थी, आपका खतरा पहले से हुआ था, आपकी आंखों में सुरमा लगा हुआ था। शान कितनी निराली है हज़रात गिरामी। जब सरकार पैदा हुए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब काबा की दीवारों के साए में है, रिवायतें मौजूद हैं, तारीख के औराक के अशार मौजूद हैं। काबे के दो दीवार से आवाज आ रही थी, उरिदल मुस्तफल मुख्तार अल्लाह तुझको बिल कुफार व यताहिरु मिन इबादतिल असलाम व यामरु बिइबादतिल मलिकिल अजीज अल्लाह। आज मुस्तफा मुख्तार की दुनिया में आमद हो चुकी है, जिनके हाथों से कुफार को तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। वो खाने काबा से बुतों से पाको साफ करने वाला है, खाने काबा को बुतों से पाको साफ करने वाला है, एक अल्लाह की इबादत का हुक्म देने वाला है। लेकिन हज़रात गिरामी अब्दुल मुत्तलिब के सामने काबा झुका, कहाँ झुका? हज़रत आमना के घर की तरफ। अभी पिछले हफ्ते में सरकार के जाए विलादत की जगह मेरी हाजिरी हुई थी, मक्का शरीफ में जिस जगह सरकार पैदा हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह उस जगह पर जाने का मुझे शरफ हासिल हुआ। अब तवज्जो के साथ सुने, अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं काबा की दीवार छू गई, आखिर मामला क्या है? काबा तो बाइज्जत घर है, काबा तो अल्लाह का घर है, काबा तो बहुत ही अजमत वाली जगह है, काबा तो बहुत ही शर्फ वाली जगह है। लेकिन काबा हज़रत आमना के घर की तरफ झुका, आखिर मामला क्या है? इसलिए कि काबा को मालूम है कि मैं अल्लाह का घर हूँ, मैं बाइज्जत हूँ, मैं अजमत वाला घर हूँ। लेकिन साथ ही साथ काबे को ये भी पता है कि जो आमना के घर में आया है वो काबा नहीं, वो तो काबे का भी काबा बनकर के आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने रहमतुल लिल आलमीन, आमदे हुजूर सुहेल मिल्लात। बहुत वो तो काबे का भी काबा बनकर के आया है। इसलिए तो लिखने वालों ने मदीना को मदीना लिखा, किसी ने तैयबा लिखा, किसी ने तीबा लिखा, किसी ने खाते शिफा लिखा, किसी ने हरा गुंडम लिखा, किसी ने सरकार का रोजा लिखा, किसी ने कुछ लिखा। लेकिन कुर्बान जाओ, जब बरेली के इमाम ने कदम उठाया है तो हद कर दी। बरेली के इमाम इस तरीके से खराज अकीदत पेश करते हैं, हाजियो आओ, हाजियो आओ, शहंशाह का हौसला देखो, काबा को देख चुके, काबे का काबा देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूबसूरत जिंदाबाद। काबे का काबा बनकर के आए सरकार। अपने तवज्जो के साथ बस एक दो छोटे से वाक़या सुनाओ, गुफ्तगू मेरी मुकम्मल हो जाए। वहां पर रवाज था, मक्का शरीफ की 12 घाटियों के पीछे बनु साद कबीले में एक कबीला रहता था जो बाकायदा दाई की हैसियत से लोगों को दूध पिलाता था, और वहां पर रवाज भी था। आपने वाक़या सुना होगा, दाइयां बहुत सारी आई, लेकिन जब हलीमा सादिया आई, कुर्बान जाइए किस्मत कितनी बुलंद है। हलीमा सादिया सद मरहबा मुबारक हो, खुदा इसी तरह गुदड़ी में डाल देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खुदा। हलीमा सादिया सद मरहबा मुबारक हो, खुदा इसी तरह गुदड़ी में डाल देता है। सरकार की शान जब अपने कदमों के जर्रे उछाल देता है, महो नुजूम को हैरत में डाल देता है। हलीमा सादिया सद मरहबा मुबारक हो, खुदा इसी तरह गुदड़ी में डाल देता है। और एक शेर अकीदे का मैं पढ़ दूं कि हम हर जलसे में बरेली का नाम क्यों लेते हैं? जी जी जी। कुछ लोगों को तकलीफ होती है कि यार हर जगह पर आला आज़म का तस्करा, आखिर मामला क्या है, आखिर वजह क्या है, वो भी सुन ले। जब अपने कदमों के सर्रे उछाल देता है, महो नुजूम को हैरत में डाल देता है। हलीमा सादिया सर मरहबा मुबारक हो, खुदा इसी तरह गुदड़ी में डाल देता है। नहीं है, नहीं है, नहीं है कुछ भी बनाया हुआ बरेली का, नहीं है कुछ भी बनाया हुआ बरेली का, हमें बरेली वाला मदीने का माल देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नवाज नवाज। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। और बरेली वाला मदीने का माल देता है। जो मदीने से बगदाद आया है, जो बगदाद से अजमेर, जो मारेरा से बरेली पहुंचा है, उसी माल को बरेली में आला हज़रत तकसीम करते हुए। शान निराली है। अब तवज्जो के साथ सुने, हलीमा सादिया ने लिया, जैसी उस बरकत वाले बच्चे को लिया ना, जमाना कहता है हलीमा सादिया ने हमारे सरकार को पाला है, ये गलत बात है। अब तो ये है कि हलीमा सादिया को हमारे सरकार ने पाला है। पूरी कायनात जिनके टुकड़ों पर पलती, क्या बात है, पूरी कायनात जिनके टुकड़ों पर पलती हो, तो हलीमा सादिया को भी किसने हकीकत में पाला है? हमारे सरकार ने पाला है। वरना तो गरीबी का आलम था। हमें खेमे में जो जानवर थे उनके थन में इतना दूध नहीं था कि पीस करके लोग अपने भूख को मिटा सकते।
لیکن اسی سرکار کو گود میں لے کر گئی نا، خیمے میں پہنچی، اللہ نے سرکار کی برکت سے جو تھن سوکھے تھے اس میں دودھ پیدا کر دیا، برکتیں چالو ہو گئی۔ اب جب سواری چلنے لگی، آپ نے واقعہ سنا ہوگا، تیزی کے ساتھ میں پہنچا تو ایک واقعہ سناؤ، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ حلیمہ سعدیہ کی سواری آگے بڑھنے لگی، لوگوں نے اعتراض کیا، جو ساتھ میں سہیلیاں آئی تھی، دائیاں آئی تھی، کہنے لگی حلیمہ سعدیہ عجیب و غریب عالم ہے، جب تو آئی تھی تو تیری سواری تو بڑی کمزور تھی، تیری سواری میں اتنی طاقت نہیں تھی، ہمارا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد حضور سہیل ملت، آمد حضور سہیل ملت، شہزادہ حضور طاہر ملت، شہزادہ حضور طاہر ملت، واحدی دولہا، واحدی دولہا، واحدی دولہا، جانشین حضور طاہر ملت، جانشین حضور طاہر ملت، واحدی دولہا، حضور صاحب سجادہ، حضور صاحب سجادہ، مسند حضور طاہر ملت، شہزادہ حضور طاہر ملت، یادگار حضور طاہر ملت، حضور صاحب سجادہ، آمد حضور سہیل ملت، فیضان واحدی، فیضان واحدی، واحدی دولہا، واحدی دولہا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تشریف رکھیں آپ پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مفتی اعجاز حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے میری سرکار سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدنا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم مرشد کامل 13 سال کی عمر میں سارے علوم سے فراغت حاصل کر چکے تھے اور مفتی بن گئے۔ سبحان اللہ، 3 سال کے بعد مفتی اعظم بن گئے۔ سبحان اللہ، 18 سال کی عمر ہوتے ہوتے پوری دنیا میں چھا گئے، سبحان اللہ، مگر کسب تھی کہ ایسا صاحب نظر مل جائے جس کے قدموں پہ اپنے فکر و نظر کو قربان کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ادھر ایک صاحب سلسلہ اس تمنا میں تھا کہ ایسا مرید مل جائے جو میری خانقاہ کے تقدس کی قیامت تک ضمانت کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام محمد رضا کو ایسے پیر کی ضرورت تھی جو ایک لمحے میں اسے مدینے تک پہنچا۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی اور سید علیہ رسول کی تمنا یہ تھی کہ ایسا مرید مل جائے کہ جو میری خانقاہ کے تقدس کی ضمانت لے لے قیامت تک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سید علیہ رسول کو مرید کی شکل میں احمد رضا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ احمد رضا کو پیر کی شکل میں علیہ رسول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان لوگوں نے اللہ۔ پوچھا کہ آپ کے یہاں کا قانون ہے بغیر مجاہدے نفس کے، بغیر عبادت و ریاضت کے جلدی مرید نہیں لیا جاتا۔ اور ایک نوجوان آیا ہے، ابھی آیا ہے، آپ نے بیعت کیا سارے فلاسفہ کی خلافت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ لوگ اپنا دل زنگآلود لے کر آتے اور احمد رضا آئینہ لے کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسے ایک نسبت کی ضرورت تھی اور مجھے احمد رضا کی ضرورت تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے۔ محشر میں جب خدا پوچھے گا آل رسول کیا لائے ہو، سبحان اللہ، میں احمد رضا کو پیش کروں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ آل رسول جن کے آباء و اجداد سرکاران بلگرام شریف، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حق ہے، حق ہے، بے شک۔ ان کی مرقبت میں امام محمد رضا نے غلابے ملا، ان کی تنابل شریف آج بھی ہم لوگوں میں
बतौर वजीफे के रहे। सुभान अल्लाह, बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। बारगाह रिसालत में मकबूल हो चुकी है। सैयदी सरकार सुहैल मियां उसी खानवादे के चश्मो चिराग हैं, सुभान अल्लाह। इज़्म बा मुसम्मा है। मेरी तो तमन्ना है कि सुहैल मियां सुहैल सितारे की तरह बुलंदी हो जाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। माशाअल्लाह। और सादात का एहतराम आला हज़रत को। सुभान अल्लाह। आला हज़रत ने ये सबक हमें दिया है कि सादाते कराम आले रसूल हैं, उनके जूते हमारे लिए सर का ताज है और जूते के नीचे की मिट्टी हमारे गाना। मगर कब ये वो सुहैल मियां जैसे पुख्ता बेशक बेशक। अगर कोई आले रसूल होने का दावेदार है और बदअकीदा है तो हमारे लिए वो बेकार है। इनकी जियारत कीजिए। वही सिलसिला है जो इमाम मोहम्मद रजा ने महाराजा शरीफ से लिया था और उनके आवाज की निशानी है। लोग कुछ भी कहते हैं मगर मेरा अकीदा अपनी जगह है। इनसे मोहब्बत करोगे और इनके बताए रास्ते पर चलोगे जी तो न कभी बदअकीदा होगे, न कभी गुमराह होगे और न कभी जहन्नम से दूर होगे। नारे तकबीर, पीरे कामिल, हुजूर सुहैल मिल्ला, हुजूर सुहैल मिल्ला, शहजादे रसूल ताहिर मिल्ला, बादशाह बहरेरा, ताजदारे बहरेरा। खतीब साहब, हाँ, जहन्नम से दूर हो जाएगा और जन्नत के उस सबकते लसानी पे निकलता होगा, शायद निकल गया होगा। बहरहाल इन्हीं अल्फाज के साथ मैं सरकार सुहैल मियां का इस्तकबाल करता हूँ तमाम अहले बिस्मा की तरफ से, अपने खानदान की तरफ से, इस जश्न के शहजाद के इस जश्न के मनाने वालों की तरफ से और अपने खानदान के तमाम शहजादों की तरफ से। माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप देख रहे हैं शान आपने सुन ली है शहजादे बिलग्राम की, शहजादे ताहिर मिल्लत की। इंशाअल्लाह ताला जो लोग अभी तक इस सिलसिले से मुंसलिक ना हो, ये अच्छा मौका है कि हज़रत की मौजूदगी है इस सिलसिले तय्यबिया वाहिदिया ये बाकायदा मुंसलिक हो जाए और एक आले रसूल के दामन से वाबस्ता होंगे। तो जिनकी बात चल रही है ना, जो नूर आया है, तवज्जो के साथ सुने, कसम खुदा की। थोड़ी देर सुनाऊं मैं, जरा हाथ उठा के दी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। तो जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। बुलंद आवाज से हाथ उठा के जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है, जिसने ये नारा नहीं लगाया उसका बेड़ा गर्क है। मुफ्ती साहब किबला ने थोड़ी से वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह अकीदे के ताल्लुक से गुफ्तगू की और आलादत के ताल्लुक से कसम खुदा की ईमान ताज़ा हो गया। अल्लाह उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, काले रसूल के फैजान से हमको मालामाल फरमाए। अब तवज्जो के साथ सुने, हलीमा सादिया आगे लेकर बढ़ी। हलीमा सादिया की सहेलियां कहने लगी, ए हलीमा सादिया अजीब गरीब आलम है, अभी तक आने में तो तेरा मामला ये था कि सवारी जगह जगह पर बैठ जा रही थी, लेकिन वापसी में मक्के की सरजमीन से जब तू वापस हो रही है तो तेरा आलम ये है कि तेरी सवारी सबसे आगे निकलती जा रही है। आखिर मामला क्या है? क्या मक्के में जाने के बाद तूने सवारी को बदल दिया है या सवारी तूने चेंज कर दी है या तूने नई सवारी खरीद लिया है? हलीमा सादिया ने कहा था, नहीं नहीं, सवारी तो कल भी वही थी, सवारी तो आज भी वही है, हाल मतलब सवार बदल गया है। इसकी बरकत है, ये बरकत वाले बच्चे का कमाल है। जब से भी ये सवारी पर आया है, सवारी में ऐसी खिदमत पैदा हो गई है कि ये सवारी सबसे आगे बढ़ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ी देर सुने, एक आले रसूल के चेहरे की ज़ियारत करें और तवज्जो के साथ जुमला सुने। हलीमा सादिया जब बरकत वाले बच्चे को लेकर के अपने घर गई, और मीलाद का मतलब है इनकी सरकार के बचपन के वाकयात पेश किए जाए, सरकार की विलादत के वाकयात को पेश किया जाए। अब हलीमा सादिया बरकत वाले बच्चे को लेकर के अपने घर में पहुंची। जब घर में पहुंची ना, दूसरा दिन हुआ। जब दूसरा दिन हुआ तो मोहल्ले की औरतें इकट्ठा हो गई, आकर के कहने लगी, ए हलीमा सादिया अजीब गरीब आलम है, तेरा मामला बड़ा अजीब गरीब है। हमने देखा है तेरे घर में तो चिराग में डालने के लिए तेल भी नहीं है, तेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है, तो गुर्बत की मारी है, तेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि तू तेल के लिए पैसे भी नहीं थे तो तू तेल खरीद सके ताकि चिराग को रोशन करे। लेकिन कल रात हमने देखा है
हम तो पैसे वाले हैं, हमारे पास तो इतनी दौलत है कि हम लोग चिराग के लिए तेल खरीद सके, हम खरीदते भी हैं, लेकिन दौलत के बावजूद हमारा मामला ये है कि रात में जब हम सोने लगते हैं ना तो हम चिराग को बुझा देते हैं, हम चिराग को बंद कर देते हैं, चिराग को बुझा कर सोते हैं। लेकिन ए हलीमा सादिया, तू तो मुफलिसों की मारी, तू तो गरीब है, तू तो मुफलिस है, तेरे पास तो इतनी दौलत भी नहीं है कि तू बाकायदा अपनी दौलत की बुनियाद पर तेल खरीदे और तेल से चिराग को रोशन करे। लेकिन कल रात हमने देखा है पूरी रात तेरे घर में चिराग रोशन था। तवज्जो के साथ सुनो मेरे भाइयों, पूरी रात तेरे घर में रोशनी ही रोशनी थी, लाइट ही लाइट थी, नूर ही नूर था। आखिर मामला क्या है? तेरे पास इतने पैसे कहां से आ गए? हलीमा सादिया ने कहा था, अरे तेल डालने के लिए मेरे पास तेल के लिए पैसा कल भी नहीं था और पैसा आज भी नहीं है, चिराग में डालने के लिए तेल कल भी नहीं था, तेल आज भी नहीं है। ये तो इस बरकत वाले बच्चे का कमाल है। जब से ये बरकत वाला बच्चा मेरे घर में आया है, इसकी बरकत ये है मेरे पूरे घर में रोशनी ही रोशनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए जो आया है वो है कौन? नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। सारे आलम में देखो कैसा नूर छाया है। और क्यों ना हो, आज आले रसूल के आने से इतनी रोशनी है, बरेली के इमाम पुकार उठे, तेरी नस्लें पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे हुजूर सुहेले मिल्लत, वाहिदी दूल्हा हुजूर साहिबे सज्जादा। मैं जब वाहिदी दूल्हा के आने से इतनी रौनक यहाँ नजर आ रही हाय 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 हाय। जरा अंदाजा लगाओ, मदीने के ताजदार जब हलीमा सादिया के घर में होंगे तो कितनी रोशनी होगी, क्या शान होगी। हलीमा सादिया के घर में रोशनी ही रोशनी फैल गई। अब हलीमा सादिया कहती है, मेरे सहेलियों पड़ोसियों सुनो, एक और ताजुब की बात सुनो। मेरे घर में एक कोठरी है, बगल में एक कमरा है। जब मुझे उसमें से सामान निकालना होता है, जैसे हमारे यहाँ स्टोर रूम होता है, कोठरी होती है, जरूरत का सामान होता है, तो कहने लगे उस कोठरी में जब जाना होता ना तो पहले मैं किसी से चिराग मोहल्ले से उधार लेकर के आती, फिर उसका अंधेरा दूर होता, मैं सामान निकाल करके वापस आती। लेकिन मामला ये है, जब से ये बरकत वाला बच्चा आया है ना, जब से आमना का लाल आया है ना, जब से अब्दुल मुत्तलिब का पोता आया है ना, जब मुझे जरूरत पेश आती है उस कोठरी से सामान निकालने की, उस स्टोर रूम में जाने की, मैं इसी बरकत वाले बच्चे को अपने गोद में उठाती हूँ, लेकर के उस कोठरी में जाती हूँ। इसकी बरकत का आलम यह है, जब मैं इसको लेकर के जाती हूँ उस कोठरी में पूरी रोशनी ही रोशनी फैल जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस लाइट में, उस नूर में, कद जाअकुम मिनल्लाह नूर जो है, जी जी, उस रोशनी में मैं अपना काम करके वापस चली आती हूँ। रोशनी में मैं अपना काम करके वापस चली आती हूँ, इतनी रोशनी हो जाती है। अब सुने, जब ये मामला हुआ ना तो अब तो पूरे इलाके में खबर फैल गई कि हलीमा सादिया के घर में बड़ा बरकत वाला बच्चा आया। और कहीं चमत्कार की बात अगर कोई सुन लेता है तो फिर वहां तो भीड़ लगती ही है। जी 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 जी। यहाँ तक कि आजकल फालतू पीर भी जो बसर के आला हजरत से गए गुजरे हैं, हटे हुए हैं, वो भी कहीं जाते हैं और उनका जुब्बा गुब्बा और उनका सिस्टम देख करके कितने उससे भी फंस जाते हैं, है कि यहाँ तक कि अगर कोई बाबा भी कहीं पर आकर के बैठ जाए और अगर कोई मामला उसका बज़ाहिर बन गया किसी उसके शैतानी चरखे में आकर के, तो दूसरे दिन से भीड़ ही भीड़, और आदमी तो कम औरतें ज्यादा। याद रखिएगा, अगर उसका ईमान सही नहीं है, जिसको आपने सोचा कि ये बाबा है इसके जरिए हमारा काम होगा, अगर उसका ईमान सही नहीं है और आपने उसको समझ लिया तो आपके ईमान का जनाजा निकल जाएगा, आपका ईमान खत्म हो जाएगा। तो अगर आलतू फालतू जगह कोई बात हो जाए तो वहां भीड़ लग जाती है। अब यहाँ तो ओरिजिनल सरकार सुभान अल्लाह, क्या बात है। आप बताओ भीड़ लगेगी कि नहीं? अब जिसको देखो भीड़, सुबह में देखो भीड़, शाम में देखो भीड़, रात में देखो भीड़, जिसको देखो कोई अपने बेटे को लेकर के आता है, ऐ हलीमा सादिया ये मेरा बेटा है, बहुत दिनों से बीमार है, तुम्हारे घर में जो बड़का लड़का आया है ना ये बड़ा बरकत वाला बच्चा है, ये बड़ी रहमत वाला बच्चा है, ऐसा करो इसके हाथ को मेरे बच्चे के सर पर रख दो, मुझे यकीन है कि मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। कोई अपनी बेटी को लेकर के आता है, कोई अपने बेटे को लेकर के आता है, कोई पानी लेकर के आता है, इस प्याले में इस बरकत वाले बच्चे को हाथ डाल दो, मैं इसको लेकर के जाऊंगी, अपने जानवर के ऊपर छिड़क दूंगी, उसके थन में दूध आ जाएगा, मेरे घर में परेशानी है दूर हो जाएगी। और क्यों ना हो ऐसा, क्यों ना हो, क्यों ना हो, ऐसा क्यों ना हो, सवाल है। अगर कोई इतराज करे तो जवाब सुनता जाए, ऐसा क्यों ना हो। हमें हम सबका अकीदा तो ये है कि हमारा बेटा बीमार हो, हमारा बेटा अपनी जिम्मेदारी के साथ, हमारा बेटा बीमार हो और हमारा अकीदा दुरुस्त हो, हमारा अकीदा दुरुस्त हो, बेटा बीमार हो
और अकीदा लेकिन हमारा सही हो, और उसके बाद हम अपने बेटे को एक आले रसूल के करीब लेकर आए और आले रसूल वाहिदी दूल्हा उसके सर पर हाथ रख दे। बात समझ में आ रही है? अगर ये हाथ रख दे तो हमारा अकीदा ये है कि बच्चे को शिफा मिल जाएगी। हमें अकीदा है तो जरा हाथ उठा के कह दो या रसूल अल्लाह। अकीदा है नहीं गवाह भी है कि नहीं? क्योंकि ये सरकार की हाल है, वो निस्बत है, वो खून इनकी रगों में है। अगर ये हाथ रख दे, अरे बिलग्राम शरीफ में देखो रोज आना, सुबह देखो तो भीड़, शाम में देखो तो भीड़, जुमरात को तो फिर लगता है कि उर्स हो रहा है, इतनी भीड़। और पानी लिए लोग खड़े हैं, क्यों? इसलिए कि यकीन है कि पानी पर अगर वाहिदी दूल्हा ने दम कर दिया तो मेरा बेटा जो मरीज है उसको शिफा मिल जाएगी। बेशक अल्लाह शिफा अता फरमा दे। हमें जब इनका आलम ये है तो मदीने के ताजदार का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने के ताजदार का आलम क्या होगा? अब सुबह भीड़, शाम में भीड़, रात में भीड़। अच्छा भीड़ होगी कि नहीं? अरे बताओ भाई, भीड़ होगी कि नहीं? अच्छा जो आएगा उसे शिफा मिलेगी कि नहीं? बुलंद आवाज से कहिए, शिफा मिलेगी कि नहीं? सरकार का हाथ पड़ जाए। और ये भी याद रखिएगा, हम सबका अकीदा ये कि सरकार उस वक्त भी नबी थे, कुंतो नबियों व आदम बैनल माए व तीन। बेशक बेशक। हम उस अकीदे के मानने वाले नहीं कि 40 साल के बाद नबूवत मिली। हम ऐसे अकीदे का खंडन करते हैं। हमारा अकीदा वही बरेली वाला बिल्कुल ठोस अकीदा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पता क्या चला कि सरकार के हाथ में वो बरकत उस वक्त भी थी कि अगर वो बीमार पर हाथ रख दे तो बीमारों को शिफा मिल जाए। अच्छा शिफा मिलेगी कि नहीं? हाथ उठा के बताइए, शिफा मिलेगी कि नहीं? शिफा क्यों ना मिले? बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक आले रसूल मौजूद है, इनके कदमों को छूकर बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक जुमला, शिफा क्यों ना मिले? जी जी जी। सरकार का हाथ पड़े और शिफा क्यों ना मिले? हमें हमारे तो अमाल भी अच्छे नहीं, हम तो किरदार के एतबार से भी अच्छे नहीं, हमारे पास तो नाम अमाल में नेकिया भी नहीं है। आपका भी मामला आपको खुद ही पता है। लेकिन आज भी मामला ये है कि नमाज पढ़ करके आप मस्जिद से निकले, हम निकले, तो आज भी कितने लोग ऐसे हैं जो प्याला लिए खड़े रहते हैं कि आप बाहर निकले हैं, पानी पर दम कर देंगे, बेटे को पिलाएंगे, बेटा हमारा ठीक हो जाएगा। जी बेशक बेशक। अगर बात सही है तो बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहो। सुभान अल्लाह। है कि नहीं? ऐसा लोग पानी लिए खड़े रहते हैं कि नहीं? कोई डब्बे में, कोई गिलास में। हमें अपने तो अपने हैं, गैर भी खड़े रहते हैं। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। अपने तो अपने गैर भी खड़े रहते हैं, है कि नहीं? ऐसा गैर भी खड़े रहते हैं। क्यों? इसलिए कि उनको भी यकीन है कि ये बाहर निकल रहा है, अगर से कभी कभी चला जाता है, लेकिन इतना पावर आ गया है कि ये दम कर देगा तो शिफा मिल जाएगी। जी। हमें जब हम जैसे आप जैसे लोगों का आलम ये है तो मदीने के ताजदार का आलम क्या हो? सुभान अल्लाह। ये हाल है खिदमतगारों का, सरकार का आलम क्या होगा? क्या सरकार हाथ रख दे, सरकार का हाथ पानी में पड़ जाए, वो पानी शिफा बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं? अब बड़ी जिम्मेदारी के साथ सुबह भीड़, शाम में भीड़, रात में भीड़। जब बहुत ज्यादा भीड़ हो तो आदमी तो परेशान हो जाएगा। जी। इतना परेशान, डॉक्टर के पास भीड़ लगती है तो डॉक्टर को भी अपना मोबाइल स्विच ऑफ करना पड़ता है। अंदर रहता है तो इन के बजाय आउट लगा देता है ताकि डिस्टर्ब ना हो। ज्यादा भीड़ होती है तो आदमी परेशान हो जाता है। अब हलीमा सारिया परेशान करे तो क्या करें? सुबह भी भीड़, शाम में भीड़, रात में भीड़। और हम तो इस अकीदे के मानने वाले हैं जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, वहां कहेंगे फिर ताजदार हम भी हैं। सुभान अल्लाह सुभान। हम तो इस अकीदे के मानने वाले। अब जरा अंदाजा लगाएं कितनी भीड़ होगी। हलीमा सादिया के दिमाग में एक आइडिया आया। अच्छा इधर आइडिया नहीं चलता क्या? चलता है। हलीमा सादिया के दिमाग में एक बात आ गई, एक आइडिया आया। किया क्या जाए? सुबह भी भीड़, शाम में भीड़, रात में भीड़। आपने अपने घर के बाहर एक गड्ढा खुदवाया। और गड्ढा समझते हैं कि नहीं? और आजकल मुसलमान कर ही क्या रहे हैं? आजकल मुसलमान कर ही क्या रहा है? गड्ढा ही तो खोद रहा है दूसरे के सामने। गिरामी हंसने की बात नहीं, अफसोस की बात है। मुसलमान की पहचान ये है कि अगर कहीं पर गड्ढा हो तो उसे बंद कर। मुसलमान की पहचान ये है कि अगर रास्ते में चलते वक्त कोई पत्थर पड़ा हो या कांटा पड़ा हो तो उसे उठा करके किनारे डाल दे। जो बंदा ये काम करता है अल्लाह उसके नामे अमाल में सदके का सवाब लिख देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये काम है मुसलमानों का। ईद मिलाद मना
नुक्ता रखेंगे और साथ ही साथ अपने अमाल को भी दुरुस्त करेंगे। इंशाअल्लाह। मुसलमानों की पहचान ये है कि मुसलमान जो उसका भाई है उसका सहारा बने, उसके सामने का झंडा मत खो दे। बड़ा है तो बड़े की जिम्मेदारी और बड़प्पन यही है कि छोटे को आगे बढ़ाए। छोटे की जिम्मेदारी ये है कि बड़े का आदर करे। जी जी बेशक। ये नहीं कि बड़ा छोटे को नीचे गिराने के चक्कर में पड़ा रहे, छोटा आगे वाले को पीछे करने के चक्कर में पड़ा रहे, ये गलत बात है। बल्कि एक दूसरे का साथ दीजिए। मुसलमान की जिम्मेदारी ये है कि भाई भाई का साथ दे, पड़ोसियों का साथ दे, बहन बहन का साथ दे। किसी के सामने गड्ढा नहीं खोदना चाहिए। और याद रखें, जो आदमी किसी के सामने गड्ढा खोदता है ना, एक दिन ऐसा आता है कि उसी गड्ढे में खुद गिरता हुआ नजर आता है। ये दीन कमा सदीनो तो दान, तुम जैसा करोगे वैसा तुम्हें बदला दिया जाएगा। अगर तुमने सरे बाजार किसी को रुसवा कर दिया, किसी को जलील कर दिया, सुनो, मन यराकाहु बिज़ंबिन फलम यमुत हत्ता यामलहु। अगर तुमने चौराहे पर बैठ कर किसी को जलील कर दिया और वहां पर उसकी इज्जत की जाती, तो सुनो, अगर उसने तौबा ना किया तो वो मरेगा नहीं, मगर खुद भी वही गलती करता हुआ नजर आएगा। सरे बाजार किसी को रुसवा मत करें। अगर अकीदा सही है, अपना है, तो आप उसको अपने दिलों में बसाइए। जिसका अकीदा दुरुस्त है उसका आपस में कोई इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। अहले सुन्नत वल जमात की बुनियाद पर, मसलक आला हज़रत की बुनियाद पर जो लोग मानने वाले हैं, समेत बात समझ में आ रही है? बड़ी जिम्मेदारी के साथ हलीमा सादिया ने गड्ढा खोदवाया और उसके बाद दो रिवायतें लिखती। एक रिवायत के मुताबिक उस बरकत वाले बच्चे यानी हमारे सरकार को लेकर गई, उनके कदमों को उस गड्ढे में पानी भरने के बाद कदमों को डाला, थोड़ी देर फिर निकाल लिया। एक रिवायत के मुताबिक आपने उस बरकत वाले बच्चे के कदमों को धुला और उसका जो गुसाला था, धोवन, कदमों का जो धोवन था, उसे ले जाकर उस गड्ढे में डाल दिया। उसके बाद ऐलान कर दिया, आज के दौर के हिसाब से समझना हो तो समझ लीजिए बोर्ड लग गया, डोंट डिस्टर्ब मी। अब मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, अब मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। किसी का बेटा बीमार है, आए इसी गड्ढे से पानी भरे ले जाए। किसी की बेटी बीमार है, आए इसी गड्ढे से पानी भरे ले जाए। किसी के जानवर के घर में दूध नहीं, आए इसी गड्ढे से पानी भरे ले जाए। किसी के घर में बरकत नहीं, आए इसी गड्ढे से पानी भरे ले जाए। किसी का बाप बीमार है, किसी की माँ बीमार है, आए इसी गड्ढे से पानी भरे ले जाए, उसको शिफा मिल जाएगी। और बताओ शिफा मिलेगी कि नहीं? मिलेगी कि नहीं? शिफा मिलेगी कि नहीं? हाँ, 100% मिलेगी। अब सुनो, जब हलीमा सादिया ने ऐलान कर दिया, अब सुबह से लेकर शाम तक भीड़ है उसी हौज के सामने, उसी गड्ढे के सामने। जिसको देखो वो आ रहा है, कोई अपना प्याला लेकर के, कोई अपना कासा लेकर के, कोई अपने बच्चों को लेकर के आए, पानी भरे ले जाए। अल्लाह उसे शिफा अता फरमा दे। हमें जब बरेली के इमाम की नजर पड़ी इस वाक़े पर, बरेली का इमाम पुकार उठा इस अंदाज में, फिर आगे अकीदत पेश करता है, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और ये इस वाक़े पर नजर पड़ी, बरेली का इमाम पुकार उठा, जिनके कदमों का धोवन है आबे हयात। क्या बात है, क्या बात है, बहुत जिनके कदमों का धोवन है आबे हयात, है जाने मसीहा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न रहमतुल लिल आलमीन, आमदे मुस्तफा, शाने मुस्तफा, औलादे मुस्तफा, हुजूर सुहेल बिल्ला। बहुत वो जाने मसीहा हमारा नबी। अरे ये बरकत वाले बच्चे की बरकत का कमाल है। ये सरकार की विलादत के वाक़यात में सुना रहा हूँ। हलीमा सादिया कहती है, एक दिन रात का आलम था, चांद रोशन था, बिल्कुल अपने शबाब पर था। रात में मामला ये होता है कि औरतें जब अपने बच्चों को सुलाती है ना, तो बाद में देखती है एक मरतबा सोने से पहले कि मेरा बेटा सो रहा है कि जाग रहा है, ये अंदाज होता है। हलीमा सादिया कहती है, चांद की नूरानियत और चांद की रोशनी बिल्कुल शबाब पर थी। और ये बरकत वाला बच्चा, ये सरदार कुरैश का वो था, ये आमना का लाल मेरे घर के अंदर मौजूद था। मैंने सोचा देख लूं एक मरतबा सो रहा है कि जाग रहा है। जब मेरी नजर पड़ी तो मैंने देखा वो बरकत वाला बच्चा कभी अपनी उंगली को ऐसे उठाता है, कभी इधर उठाता है, कभी उधर उठाता है। मैं देख करके हैरान हो गई। मैंने देखा ये बरकत वाला बच्चा अगर अपनी उंगली को ताहिरी जानिब करता है तो आसमान में चांद ताहिरी जानिब चला जाता है। अगर ये बरकत वाला बच्चा अपनी उंगली को बाई जानिब करता है तो आसमान में चांद बाई जानिब चला जाता है। ये बरकत वाला बच्चा अपनी उंगली को बाई की जानिब करता है तो ये चांद बाई की जानिब चला जाता है। ये बरकत वाला बच्चा अपने उंगली को अगर सर की जानिब करता है तो ये चांद बिल्कुल सर की तरफ चला जाता है। मैं देख करके हैरान परेशान थी। बरेली के इमाम की नजर पड़े, अर्ज करते हैं, चांद जाता उधर, उठाते महल में काही चलता
बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। बेशक ये शान है सरकार की। अब आखिरी जुमला सुन ले, गुफ्तगू को मैं मुकम्मल कर दूं बड़ी तेजी के साथ। एक छोटा सा वाकया है, सुना दूं भाई? जरा हाथ उठा के बताइए, सुना देंगे? ना जी, सुनेंगे ना? कौन तो नहीं हो रहे? हलीमा सादिया की बेटी थी हज़रत शीमा। वहां पर दस्तूर ये था कि शाम के वक्त उस मोहल्ले में, बनु साद कबीले में छोटा सा मोहल्ला था, एक ऊंची जगह थी चबूतरा। वहां पर शाम के वक्त सारी बहनें अपने अपने भाई को सजाकर सवार कर लेकर के आती। तवज्जो के साथ सुने, सजा करके सवार करके लाती। आज भी मामला होता है, बहनें होती है कहीं जाने लगती है तो कहती है अम्मी हमारे बाबू को तैयार कर दो, हम इसको भी लेके जाएंगे। ले जाके फिर बताती, देखो मेरा बाबू, मेरा भाई कितना अच्छा है, इसके रुखसार को देखो, इसकी आंख को देखो। बहनें कहती उनको बड़ी खुशी होती। हज़रत शीमा ने कहा, अरे अम्मी जान, आज इस बरकत वाले बच्चे को तैयार कर दीजिए। एक निस्बत के एतबार से, चूंकि आप मेरी माँ हैं, लिहाजा आज इस बरकत वाले बच्चे को आप तैयार कर दे। मैं भी इनको लेकर के जाऊंगी, मैं भी इनको लेकर के जाऊंगी। और जहां पर सारी बहनें बैठ करके अपने भाइयों के हुस्न के तस्करे करती है ना, जहां पर सारी बहनें बैठ करके अपने भाई के जमाल के तस्करे करती है, मैं भी अपने भाई के जमाल का तस्करा करूंगी। मैं भी इस बरकत वाले बच्चे के हुस्न का तस्करा करूंगी, मैं भी इनकी आंख का तस्करा करूंगी, मैं भी इनके हुस्न जमाल का तस्करा करूंगी। जब हज़रत शीमा ने हज़रत हलीमा सादिया से कहा ना, तो हज़रत हलीमा सादिया ने उनकी बात मान ली, जिद करने पर उनकी बात मानी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तैयार किया, हज़रत शीमा को दिया। और देने के बाद कहा, अरे शीमा ऐसा करो, जब इनको लेकर के जाओ तो पहले इनके रुख पर, इनके चेहरे पर पर्दा डाल दो, ओढ़नी डाल दो। तवज्जो के साथ सुनना, बस आखिरी जुमले बड़ी तेजी के साथ गुफ्तगू एंड की तरफ ले जा रहा हूं। ओढ़नी डाल दो, लेकर जाना, रास्ते में मत खोलना, और चबूतरे पर जाना तब भी मत खोलना। जब सारी बहनें अपने भाइयों के जमाल का तस्करा कर ले, सारी बहनें अपने भाइयों के हुस्न का तस्करा कर ले, तो उसके बाद तुम रुखे मुस्तफा से इस चादर को हटा देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके बाद रुखे मुस्तफा से चादर को हटाना। हज़रत शीमा ने कहा, अच्छी बात है अम्मी, मैं ऐसा ही करूंगी, मैं लेके जाऊंगी, रास्ते में नहीं खोलूंगी। जब सारी बहनें अपने भाई के हुस्न का तस्करा कर चुकेंगी, जमाल का तस्करा कर चुकेंगी, रुखसार का तस्करा कर चुकेंगी, जब पेशानी का तस्करा कर लेंगी, ज़बाए मुबारक का तस्करा कर लेंगी, तो मैं भी इस बरकत वाले बच्चे के चेहरे के ऊपर से नकाब को हटा दूंगी, हिजाब को हटा दूंगी, ओढ़नी को हटा दूंगी, रुमाल को हटा दूंगी। कहा ठीक है, वादा कर लिया, लेकर चली। लेकिन कुर्बान जाइए, जब हज़रत शीमा लेकर चली, हमें कौन है जो सरकार के चेहरे का दीदार नहीं करना चाहता? क्या बात है, कौन है जो सरकार के चेहरे का दीदार नहीं करना चाहता? ये तो दो पैर के कुछ जानवर होते हैं जिनके दिलों में सरकार की उल्फत नहीं, जो 12-12 मिला के होते हैं। वरना कसम खुदा की, सरकार की शान तो ये है कि चरिंदों परिंद भी सरकार की रुखे सेवा के मुश्ताक होते हैं। क्या आपने वाकया नहीं सुना, गारे सौर के अंदर जब सिद्दीक के अंगूठे में सांप ने काटा, जो लोगों ने मौरखीन ने लिखा है, उसकी एक वजह यह भी थी कि सांप बहुत सालों से रुखे मुस्तफा के दीदार के लिए मुश्ताक था। अब पाबंदी लग गई थी, इसलिए अंगूठे में डस लिया ताकि अंगूठा हटे, रुखे मुस्तफा की ज़ियारत हो जाए। सुभान अल्लाह। हलीमा सादिया के घर में 3 दिन सरकार जब जंगल नहीं तशरीफ ले गए तो बकरियों को शेर ने पकड़ लिया। सरकार गए, कहा या अबुल हारिस मामला क्या है? शेर के सरदार ने जवाब दिया, या रसूलल्लाह कई दिनों से आप आए नहीं थे, हम आपके चेहरे के दीदार के मुश्ताक थे। हम लोगों ने मशवरा किया कि हम लोग बकरी को पकड़ने सुलाने के लिए मुस्तफा आएंगे, उनके चेहरे का दीदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुलाने के लिए मुस्तफा आएंगे, उनके चेहरे का दीदार हो जाएगा। हमें कौन है जो रुखे मुस्तफा के दीदार का मुश्ताक ना हो? हमें चरिंदों परिंद ज़ियारत करना चाहते हैं, जानवर प्यारे आका के चेहरे के दीदार करना चाहते हैं। जवानात के अंदर है, हवाओं में ये इश्तियाक है कि सरकार के चेहरे का दीदार हो जाए। फज़ाई मुश्ताक है कि सरकार के चेहरे का दीदार हो जाए। चरिंदों परिंद मुश्ताक है कि सरकार के चेहरे का दीदार हो जाए। हशरातुल अर्द मुश्ताक है कि सरकार के चेहरे का दीदार हो जाए। सबके दिलों में तमन्ना है कि नहीं है? हमें हर आशिक, बड़ा से बड़ा गौस, कुतुब, अब्दाल, वो भी यही तमन्ना करता है। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह, मेरे दिल में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। हमें दुनिया में कौन है जो प्यारे आका को देखना नहीं चाहता, जो प्यारे आका को दीदार नहीं करना चाहता, जो मुस्तफा की ज़ियारत का मुश्ताक नहीं है, जिसके दिल में ये तमन्ना नहीं है। लेकिन किया क्या जाए, हज़रत शीमा चली तो है, रुखे मुस्तफा को देखा कैसे जाए? ऊपर तो पर्दा पड़ा हुआ है, रुखे मुस्तफा पर तो हिजाब डाल रखा है, हलीमा सादिया की बेटी ने पर्दा डाल रखा है, आखिर चेहरा देखा कैसे जाए? चरिंदों परिंद मुश्ताक है, चरिंदों परिंद के दिल में तमन्ना
तमन्ना है कि किसी तरीके से पर्दा हट जाए और रुख मुस्तफा का दीदार हो जाए। जानवर जो है वो भी मुश्ताक है, वो उनके दिल में भी इश्तियाक है कि रुख मुस्तफा से पर्दा हटे। हजरत शीमा ने पर्दा डाल रखा है, पर्दा हट जाए, प्यारे आका के मुख्य चेहरे की दीदार से मुशर्रफ हो जाए। चरिंदे परिंदे दीदार के मुश्ताक है, हैवानात दीदार के मुश्ताक है, फजाओं में ये तमन्ना है, हवाओं में ये तमन्ना है, सारे लोग मुश्ताक है, लेकिन करें तो क्या करें। हजरत शीमा ने आपके रुख मुस्तफा पर प्यारे आका के चेहरे पर पर्दा डाल रखा है, हिजाब डाल रखा है। गोया कि सबके दिल में तमन्ना है कि काश रुख मुस्तफा से ये चादर हटे और रुख मुस्तफा का दीदार हो जाए। सबके दिल में ये तमन्ना थी, सबके दिल में ये आरज़ू थी, तमन्नाएं मचल रही थी। गोया कि सबने अपनी ज़बाने हाल से यही कहा होगा, सबने अपनी ज़बाने हाल से यही कहा होगा। हमें जब इस वाक़े पर नजर पड़ी बरेली के इमाम की, तो बरेली के इमाम पुकार उठे और सबकी तमन्ना यही थी, उठा दो पर्दा, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर भाई हिजाब में है, ज़माना तारीख हो रहा है कि महर कब से निकाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत जबरदस्त, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सबके दिल में तमन्ना। कौन है जो प्यारे आका को नहीं देखना चाहता? कौन है जो प्यारे आका के चेहरे का दीदार का मुश्ताक नहीं है? चरिंद परिंद भी मुश्ताक है, जानवर भी मुश्ताक है, हवाओं फसाओं के दिल में तमन्नाएं मचल रही है, लेकिन चेहरे पर पर्दा पड़ा हुआ है। लेकिन सबके दिल में तमन्नाएं मचली ना, अल्लाह ने उनकी दुआओं को कबूल कर लिया। एक हवा का झोंका आया, एक हवा का झोंका आया और हज़रत शीमा के करीब ऐसा आया, रुख मुस्तफा से चादर को हटाया, चादर हटी, सबने रुख मुस्तफा की ज़ियारत कर ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबको दीदार हो गया। हज़रत शीमा ने फौरन चादर को वापस डाल दिया, फौरन डाल दिया वापस, तेजी के साथ आगे बढ़ी, चबूतरे पर पहुंच गई। जब चबूतरे पर पहुंची तो वहां पर तो सारी बहनें मौजूद थी। हर बहन अपने भाई को उसने के तस्करे कर रही है। कोई बहन ये कह रही, देखो मेरा भाई का चेहरा कितना प्यारा है, मेरे भाई की आंख कितनी प्यारी है, मेरे भाई की निशानी कितनी अच्छी है, मेरे भाई के लम्हाए मुबारक कितने अच्छे हैं, मेरे भाई के कान कितने अच्छे हैं, मेरे भाई के बाल कितने अच्छे हैं। सारी बहनें अपने भाई के हुस्न का तस्करा कर रही थी, जमाल का तस्करा कर रही थी, आंख का तस्करा कर रही थी, पेशानी का तस्करा कर रही थी, रुखसार का तस्करा कर रही थी, लम्हाए मुबारक का तस्करा कर रही थी। जब सब लोगों ने, सब बहनों ने अपने भाइयों का तस्करा कर लिया, इतने में हज़रत शीमा ने प्यारे आका के रुख से, प्यारे आका के चेहरे से चादर को हटा लिया। सुभान अल्लाह। पर्दे को हटाया, पर्दे को हटाया। जैसी बहनों की नजर पड़ी, अब सारी बहनें अपने भाइयों के हुस्न को भूल गई। सारी बहनें अपने भाइयों के हुस्न को भूल गई, इसलिए कि ये हुस्न तो क्या है, यहाँ तो नाम का भी है। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। यहाँ तो शान निराली है, यहाँ तो अरब के बहादुर लोग भी नाम पर जान देने के लिए तैयार हैं। अब सुने, जैसी पर्दा हटा, अब सारी बहनें अपने भाइयों को छोड़ करके कहने लगी, ऐ शीमा, ये बरकत वाले बच्चे का चेहरा कितना खूबसूरत है, इसकी आंख कितनी खूबसूरत है, इसकी पेशानी कितनी खूबसूरत है, इसके लम्हाए मुबारक कितने खूबसूरत है, इसके बाल कितने प्यारे हैं, इनकी आंखें कितनी प्यारी है, इनके कान कितने प्यारे हैं, इनके दस्ते मुबारक कितने अच्छे हैं, इनके कदरे मुबारक कितने अच्छे हैं। सारी बहनें अपने भाई को छोड़कर आज प्यारे आका के हुस्न के तस्करा कर रही है, हुस्न जमाल का तस्करा कर रही है। मगरिब का वक्त है, सूरज गुरूब होने के करीब है, सूरज बिल्कुल डूबने वाला है, सूरज की आखिरी शुआएं, सूरज की आखिरी किरणें रुख मुस्तफा पर पड़ रही थी, सूरज गुरूब हो रहा था। ऐसा लगता था कि सूरज भी हाथ को बांध करके रुख मुस्तफा के हुस्न की खैरात मांग रहा था, प्यारे आका के हुस्न जमाल की खैरात मांग रहा था। सूरज भी अपने ज़माने हाल से यही कह रहा होगा, जिसको बरेली के इमाम ने अपने अंदाज में नकल कर दिया। तवज्जो के साथ सुनना, आखिरी लम्हात में रुख मुस्तफा पर, रुख मुस्तफा पर सूरज की शुआएं पड़ी। ऐसा लगता था कि सूरज भी अपनी ज़माने हाल से यही कह रहा था, चमक तुझसे पाते हैं चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले बरसा नहीं देख कर अपने रहमत पदों पर भी बरसा दे, बरसा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत जबरदस्त। ये शान है सरकार की, सरकार ये बचपन का आलम है। जरा सोचे, आप अंदाजा लगाएं शान कितनी निराली है। वो जाहिल लोग हैं जो प्यारे आका पर एतराज करते हैं, वरना 360 बुत भी जमीन पर गिर गए थरथरा करके, और सबने बेज़बान कहा था, बुत शिकन आया ये कहकर सर के बल बुत गिर पड़े, झूम कर कहता था काबा, अस्सलातु वस्सलाम ऐ शहंशाह मदीना, अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनत अर्शे मुअल्ला,
اللہ نے آسمان کو تاروں کے ذریعے سجایا، زمین میں سرسبز شادابی پھیلی، چاروں طرف خوشحالی کا ماحول ہوا۔ کافروں نے کہا تھا یہ سال تو خوشی کا سال ہے، یہ تو فرحت و انبساط کا سال ہے۔ حضرات گرامی، جمیل قادری کی نظر پڑی، پھول پڑے، پیارے آقا کی آمد ہوئی، گھنچے چٹکے، پھول مہکے، چھ شہائی بلبلے، گل کھلا باغے حق کا، الصلاۃ والسلام، گل کھلا باغے حق کا، الصلاۃ والسلام۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تلک سارے نبیوں نے پڑھا ہے الصلاۃ والسلام۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ اور یہ شعر آخری مل کر پڑھے، میں وہ سنی ہوں زمین ہے، خالی مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام۔ اور لوگ اعتراض کریں کہ یار میلاد منانا کہاں لکھا ہوا ہے، تو مفتی صاحب بلّہ کے پاس آپ آئیں گے، اتنی دلیل دیں گے کہ پوری رات ختم ہو جائے گی لیکن دلائل ختم نہیں ہوگی قرآن کی روشنی میں۔ اور میں نے شروع میں امام قسطلانی، علامہ طحاوی، علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی کے تمام اقوال کو پیش بھی کر دیا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اب سنیں بس ایک جملہ، کتاب میں کہاں لکھا ہے یہ تو مفتی صاحب آپ کو بتائیں گے، علامہ فیضان صاحب آپ کو بتائیں گے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ لوگ پوچھتے ہیں کہ میلاد منانا کہاں لکھا ہوا ہے۔ ہمیں کتاب اپنی جگہ پر ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ سرکار کا میلاد منانا کتاب چھوڑو، الحمدللہ یہ میلاد منانا ہم سنیوں کی قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ ہم سنیوں کی قسمت میں لکھا ہوا ہے میلاد منانا۔ گرامی اس بات کو یاد رکھیں۔ اور ہم یہاں سے سلام پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ سرکار جب مدینے تشریف لائے تھے نا تو وہاں بنی نجار کی بچیاں بھی کھڑی ہو گئی تھی، عورتیں بھی کھڑی ہو گئی تھی، مرد بھی کھڑے ہو گئے تھے، سب نے استقبال کیا تھا اور بچیوں کی زبان پر باقاعدہ ترانہ تھا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا نادى للہ بھائی۔ ہم لوگ آج اسی کی پیروی کرتے ہیں، ہم بسوا میں کھڑے ہوتے ہیں، چاہے مسجد میں چاہے جلسے میں، تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ بس آخری جملہ سنیں، میری گفتگو مکمل۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں یار یہاں سے پکاریں گے تو کیا وہاں سے سنیں گے؟ ارے یار وہ جاہل لوگ ہیں۔ الحمدللہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر کے اگر میر عبد الواحد بلگرامی کو پکارتے ہیں تو وہ بلگرام میں بیٹھے بیٹھے سن لیتے ہیں۔ بے شک ہم حضور پاتے ہیں بلگرام کو یاد کرتے ہیں تو وہ سنتے ہیں، بے شک ہے کہ نہیں؟ ہم تو بریلی کے امام کو یہاں سے پکارتے ہیں تو وہ سنتے ہیں، اجمیر کے راجہ کو پکارتے ہیں تو وہ بھی سنتے ہیں، بغداد کے شہنشاہ کو پکارتے ہیں تو وہ بھی سنتے ہیں، کربلا کے سلطان کو پکارتے ہیں تو وہ بھی سنتے ہیں۔ ہمیں یہ حال ہے خدمتگاروں کا، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے تو بریلی کے امام پکار اٹھے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو کچھ بیان کیا ہے اس میں لفظاً اور معناً اگر کوئی غلطی ہوئی تو میں سب کی موجودگی میں علماء اکرام آل رسول کی موجودگی میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ بھی مل کر پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، وآخر کلماتی الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔